Hello, good morning, dear students. Today we are going to look about class 9th English medium, chapter number 8, Reach for the Top. This is the title of this chapter. Part 1, Santosh Yadav, about what we were looking in part 1. Today, we are going to look about few more details about Santosh Yadav. Let's talk about it. See, up to now we have seen that Santosh Yadav, a girl, was a sixth one, and she has got 5 brothers. Her father used to give her a kind of unique place in the village. Though Santosh Yadav's parents and Santosh Yadav were living in a conservative society, traditional way, she wanted to become or she wanted to do slight different from the rest. We have also seen, dear student, that the other children of her age used to wear a traditional dresses. At the same age, Santosh used to wear a shorts. This is the place where we can say Santosh Yadav has a different frame of mind from the rest of the children of his age in the village. She always tried to do something different. When her parents asked her to get married, when she reached up to the age of 16, she firmly put a condition that if there is no education, she will not get married. Ultimately, at last, her parents got ready to help her, and she completed her education, and then she reached up to the college at Delhi. Then she went to Jaipur, where exactly after or behind her hostel there lie Aravalli Hills, where for the first time she dreamt to be the mountaineer, to be the adventurous person. And she started the journey. Within 4 years of this thought, she completed her first expedition of Mount Everest by taking lot of training and hard work. She achieved it in 1992. Since then, वहां से हमें आज आगे देखना है. चलो देखते हैं. Just stay on your screen, dear student. See, during 1992 Everest mission, Santosh provided a special climber who lay dying at South Pole. South Pole, it is one of the tough part of Everest, जहां पे बहुत सारे ऐसे जो माउंटेनियर्स हैं वो करीबन मेंटली टूट जाते हैं कि अब यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता. एक ऐसा एक फेज आता है. आप भी जब कोई अच्छा काम करने जाते हो, कोई ऐसा काम करने जाते हो जहाँ पे आपका नाम हो सके, तो वहां पे क्या होता है कि एक प्लेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा टाइम आता है कि जहां पे आपको चारों ओर से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. और दिस इज द प्लेस वेयर मैक्सिमम ऑफ पीपल जस्ट लिव टू डू द एफर्ट्स. बट संतोष यादव, इस जगह पे उसको बहुत अच्छी केयर मिलती है. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. उसने अपने एक दोस्त को, अपने पार्टनर को, जो क्लाइंबर था उसको उस साउथ पोल में से बचाने की कोशिश कर रही थी. बट
अनफॉर्चुनेटली वी कैन से फेथ हैज फॉलन डाउन, जिसको आप बोल सकते हो, राइट। तो वहां से वो अनसक्सेसफुल रही, उसको बचा नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन दूसरे जो क्लाइंबर वहां पे उसके साथ में था उसको वो बचा पाई, जिसका नाम था मोहन सिंह। Who could or who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him? अगर संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर में से थोड़ा सा ऑक्सीजन अगर उस मोहन सिंह को नहीं दिया होता तो वो भी शायद अपने पार्टनर की तरह, मतलब जो एक और मर गया था ना, ठीक उसी तरह मोहन सिंह का भी वैसा हाल होता। विदिन 12 मंथ, करीबन 12 महीने बीते होंगे, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमन एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। अभी इस बात का करीबन 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे और इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन की तरफ से संतोष यादव को इनविटेशन मिला कि भाई आप आओ हमारे साथ, यहाँ से आप एक्सपेडिशन शुरू करो, एवरेस्ट पे चलो। She then scaled the Everest a second time. This is the second time when she scaled the Everest. ये उसकी लाइफ में दूसरी बार था कि उसने एवरेस्ट को स्केल किया, मतलब चढ़ी वो फिर से। Thus, setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. जो पर्वतारोहियों की श्रेणी होती है उसमें न केवल संतोष यादव ने अपने आप को वहां पे गौरवान्वित किया, प्राउडी फील किया, प्रूव किया, अपितु अपने देश को भी वहां पे नाम उसका नोट करवाया कि भाई किसी एक देश की ऐसी वुमन की जो एक साल के भीतर भीतर 2 बार एवरेस्ट को सर चढ़ चुकी है, कर चुकी है। तो ऐसा यहाँ पे उसने 2 बार कर दिखाया था। उसने भारत का नाम एक यूनिक प्लेस पे लिखवा दिया था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट, उसके ये जो अचीवमेंट्स थे उसके रिकॉग्निशन के लिए, मतलब उसको प्रोत्साहन करने के लिए, इसके अचीवमेंट्स को उसको अवार्ड देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर द पद्मश्री। भारत की तरफ से भी उसको पद्मश्री का अवार्ड एनायत किया गया, पदवी दी गई, जो बहुत रेयर लोगों को इंडिया में दी जाती है, वैसा एक सम्मान उसको दिया गया, राइट। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट, कि जब भी आप ऐसा कुछ भी करते हो जो नेशन को प्राउड फील करवाता है, अपने आप को प्राउड फील करवाता है और दुनिया में उसका नाम हो जाता है, तब ऐसे अवार्ड एनायत किए जाते हैं। इसके लिए बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, राइट। न सुप्तस्य सिंह मृगा प्रविशन्ति, मतलब आप सोते रहोगे, सिर्फ सोचते रहोगे तो आपको कुछ भी अचीवमेंट नहीं मिलेगा। कहने का मेरा तात्पर्य वह था कि अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम करने की शुरुआत करते हो, एफर्ट्स लगाते हो, तो चाहे जितनी भी कठिनाइयां आने के बावजूद भी आप उस कार्य पे डटे रहते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा ये कार्य आपका सफल होगा और the world will notice your name, दुनिया आपका नाम नोटिस करेगी। As we have set an example in front of us in the name of Santosh Yadav, describing her feeling when she was literally on the top of the world in the sense on, यहाँ पे ये दोनों तरीके से she was on the top of the world, मतलब एक दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, राइट। तो उसकी टॉप पे वो 2 बार पहुंची, उसको अवार्ड दिया गया। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं जो 2 बार कंटिन्यूअसली इस तरह से एक वुमन होके पहुंची हो, तो दुनिया में उसका नाम रजिस्टर्ड हो गया। दूसरा, यहाँ पे उसको पद्मश्री मिला इसी काम की वजह से, तो शी फील ऑनर
राइट। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट दिया गया है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे दोनों तरीके से उसके लिए प्रूव होते हैं। संतोष has said, संतोष ने कहा इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट। एनॉर्मिटी का मतलब होता है ये ग्रेट मूवमेंट होती है, एनॉर्मस, बड़ा, ये बड़ा पल था उसकी लाइफ में, राइट। बट ये बड़ा पल आने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं आता। टू सिंक इन, देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे एवरेस्ट का जो शिखर है उसको बोला गया है। यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि अलोफ्ट का मतलब होता है हमारे इंडियन ट्राई कलर को, मतलब तिरंगे को वहां पे फ्लटर करना और वहां पे गाड़ देना। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड नाउ। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। ये बहुत आध्यात्मिक वाली, बहुत जिसको बोलते हैं ना सुकून वाली स्पिरिट मूवमेंट थी। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। उस टाइम संतोष यादव ने कहा कि मुझे एक भारतीय होने पे बहुत गर्व हुआ था, राइट। ऑल्सो अ फेवरेंट एनवायरमेंटलिस्ट। फेवरेंट मतलब जो सिंसियर फीलिंग से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आप जिसको बोलते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड द ब्रॉट डाउन द 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। और उसने क्या किया, एक अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट मतलब पर्यावरण को बचाने वाले व्यक्ति की तरह उस टॉप पे जाके जो भी कूड़ा कचरा उसको मिलता था वो करीबन 500 किलोग्राम जितना कूड़ा कचरा वो धीरे धीरे नीचे लेके आई। तो न केवल उसने अपना शौक कंप्लीट किया, अपना एडवेंचरस जो लाइफ में कुछ एडवेंचर कर दिखाने का एम था वो कंप्लीट किया, देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात थी वो कंप्लीट किया, और एनवायरनमेंट को कैसे हेल्पफुल बने तो वो, मतलब एक काम करने से उसने अपने सभी गोल को एक साथ अचीव किया। दिस इज व्हाट अबाउट द संतोष यादव। आई होप डियर स्टूडेंट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड यूनिट better. This will also helpful to you in your life to achieve or to set a big goal and how to follow it, how to achieve it. Please stay home, stay safe, stay careful. Thank you very much and keep reading.